हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और एक वीडियो देखी अभिजीत चावड़ा जी की जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो टर्क्स थे जब उन्होंने अपना सल्तनत इंस्टॉल कर दिया इंडिया में, तो फिर भी वो कोड लैंग्वेज के तौर पे पर्शियन को क्यों यूज़ कर रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता, पर्शियन एक लैंग्वेज है जो कि इरानियन लोगों की लैंग्वेज है, जो मॉडर्न डे ईरान है, जिसको पर्शिया कहते थे। एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स था शुरू से लेके आज तक की हिस्ट्री में। जो टर्क लोग थे, जो मिडल एजेस में जितने भी जो मुस्लिम एम्पायर्स थे इंडिया में, वो सारे ओरिजिनेटेड थे टर्की के लोगों के थ्रू, टर्क्स के थ्रू, जो कि बेसिकली आज के टाइम पे मॉडर्न सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों से आते हैं। और मॉडर्न टर्की और अज़रबैजान भी टर्किक ओरिजिन लोगों का ही के ही देश हैं। और अपेरेंट हुआ कि इनकी खुद की एक लैंग्वेज है जिसको टर्किक लैंग्वेज कहते हैं या टर्किश लैंग्वेज कहते हैं। सिमिलर होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान का थोड़ा डायलेक्ट डिफरेंट होगा, बट टर्की का डिफरेंट होगा, उज़्बेकिस्तान का डिफरेंट होगा, बट लैंग्वेज सेम ही है। बट इन लोगों ने जब इंडिया में अपने एम्पायर इंस्टॉल किए तो, या बनाए, वट जो भी, तो इन्होंने पर्शियन क्यों क्यों यूज़ किया एज ए कोर्ट लैंग्वेज, जबकि इनकी खुद की एक लैंग्वेज थी। तो इस चीज़ पे अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो दिखी, मुझे लगा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग सोचते होंगे इसके बारे में, तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो। If the Turks, the Mughals, came from Uzbekistan, then what was this obsession of theirs with the Persian language? Why did they impose Persian and propagate it in Bharat instead of their own mother tongue or Arabic? What special value did Farsi hold in their eyes? That's an excellent question, Gagi. मेरे को भी क्वेश्चन बहुत So अच्छा लगा। yeah, it's true. The Mughals were actually Turks. Their language was most likely Chagatai, which is an extinct Turkic language. So their mother tongue was a Turkic language, one of the Turkic languages, and yet they used Persian as the court language and the official language in India. So how did this come about? That's a fascinating question. So here's what happened. The original Turkic invader, of the so-called Mughal dynasty, was Babur. His son was the extremely weak and ineffective Humayun, right? Humayun was, he had no great qualities. He was quite kind of a loser, right? So Humayun was defeated by Sher Shah Suri sometime in the 16th century. Sher Shah Suri was you can call him an Indian. He was born, I think, in Bihar, I think. बिहार, He was a यस। Pashtun, but yeah, Pashtun. अफगान सरदार जो बिहार के एरिया में था, उसका बेटा था हुमायूं। ओरिजिन अफगान है, बट इंडियन बॉर्न था, बिहार में बॉर्न हुआ था। Are Indians. Well, they originally are of Indian ethnicity. So Sher Shah Suri was a Pashtun. He kicked this foreign invader, Humayun, out of India. So Humayun was forced to run for his life, and he went into exile in Iran. He sought refuge in Safavid, Iran. And the Shah of Iran was Tahmasp, I think, at the time. So what happened was that he spent some time in Iran under the refuge of the Shah of Iran, Tahmasp, and this Shah of Iran, he agreed to help Humayun recapture Delhi and the kingdom he had lost in India. So after some time, the re-invasion of India happened, and Humayun was. So what happened was that Sher Shah Suri, he was in power in Delhi only for 5 years or so, वो मर and गया था he got एक्सीडेंट में। killed in some stupid gunpowder or something accident. So he did not die in war. He got. शेरशाह सूरी एक्चुअली बहुत ही, जिसे कहते हैं, कॉम्पिटेंट रूलर था। आज के टाइम पे भी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो ओरिजिनली शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। जीटी रोड जो दिल्ली से भी क्रॉस होती है। उस अपने तोप खाना जिसको कहते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। Killed because of some accident, and that's what enabled Humayun to invade India again. And he came into India with the help of the Persians, and he brought with him a great deal of Persian bureaucrats and officials and all that, right? And these bureaucrats and officials, see, the Persians are very close linguistically and ethnically to India. The Turks are very different.
they are very different from Indians and from Persians as well. So the Persians were well versed with India. They are पर्शियन और हिंदी और संस्कृत जो है ये सेम लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेजेस हैं, इसलिए ये क्लोज़र है, इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह क्लोज है. टर्किक ऑन द अदर हैंड टोटली एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है. नॉर्दर्न सेंट्रल साइबेरिया से ओरिजिन है इसका. इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है जिसका पर्शियन और संस्कृत जिसमें से बिलोंग करती है, टर्किक इस फैमिली से बाहर की लैंग्वेज है, जैसे कि अरबिक एक बाहर की लैंग्वेज है. इसीलिए इनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह है वो चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं करती कॉन्टेक्स्ट के लिए. understood India quite well. So Humayun came into India, reinvaded India, and was able to recapture Delhi and his lost kingdom. And he basically employed all these Persians as his staff, as his bureaucracy and officers and all that. And that's how Persian was introduced as the court language of the Mughals. The Turks were basically illiterates. They did not know how to administer a great civilization, something as complex as India. The Persians had a lot of experience in that. The Persians themselves, as I said, they understood India quite well. So it was beneficial for Humayun to employ these Persians as his officers, his staff, his bureaucrats, his officers, and all that. And that practice continued in the reign of Humayun's son Akbar. So, then it continued throughout the Mughal Empire. Slowly, they became more and more Persianized. Many of these Mughals had Indian mothers, right? Some of them also had Persian mothers and so on. So eventually they became more Indianized and Persianized. And they lost slowly over the generations whatever Turkic heritage they had, to some extent. So that is the reason why the Persian language was introduced into India as the court language and the language of the officials. But the thing is that it only remained as a court language and the language of the officials. It never found its way into the common vocabulary of the Indians, right? Indians still don't really use Persian even after about 2 or 3 centuries of Turkic occupation in which Persian was the court language. Yes, certain words have infiltrated into the so-called Hindi vocabulary. This mongrel language called Urdu is a mixture of Hindi and it has some Turkic loan words and it has a great deal of Persian words, vocabulary. Yeah. But the overall grammatical structure and the roots of the language are very much in Prakrit and Sanskrit. Mm-hmm. So that is the only consequence the Persian language had in India. That is the birth of this strange hybrid Urdu language. So that in short is how Persian came to be the official court language of the so-called Mughals. सबसे पहले तो एक बात याद आ रही है, बचपन में कहावत सुनते थे बड़े लोगों से, या फिर स्टोरीज़ वगैरह में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा. प्रेमचंद की जैसे स्टोरीज़ मैंने काफ़ी, प्रेमचंद का ऑलमोस्ट मैंने सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक बात सुनने को मिल जाएगी कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई करम का खेल. तो ये बड़ा ही अजीब लगेगा आज के टाइम पे सुनने में. कहने का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने फ़ारसी पढ़ी हुई है बट इसे तेल बेचना पड़ रहा है. तो आज ये बिल्कुल ही सेंस मेक नहीं करता ये मुहावरा, क्योंकि आज के टाइम पे तेल बेचना कोई छोटा काम नहीं है. इनफैक्ट तेल बेचना वन ऑफ द बिगेस्ट काम है. दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू वाली कंपनी का नाम अरामको है, जो कि तेल बेचती है. सऊदी अरब की जो कंपनी है जिसके पास सऊदी अरब के तेल भंडार का कंट्रोल है. तो पहली बात तो वो पार्ट रेलेवेंट नहीं रहा. और दूसरी बात, पढ़े फ़ारसी, जैसे कि मतलब यार इसने फ़ारसी पढ़ी हुई है, जैसे कि फ़ारसी पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है. तो वो भी अब इतनी इंडिया में सोचेगा हाँ फ़ारसी पढ़ ली तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है. लेकिन उस ज़माने में इस बात से पता चल रहा है कि फ़ारसी ही कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. फ़ारसी कोर्ट लैंग्वेज थी, और अगर आपको सरकार में किसी बड़ी पोजीशन पर जाना है तो फ़ारसी आना ही मैंडेटरी था, उसके बगैर नहीं हो सकता था. और ये मुहावरा किसी ऐसे इंसान के लिए था कि यार इसको फ़ारसी आती है बट फिर भी इसको एक छोटा काम करना पड़ रहा है. यानी कि हर फ़ारसी बोल सकने वाला जनरली अच्छी पोजीशन पे होता था उस टाइम पे. इस चीज़ से ये पता चल रहा है. तो एक चीज़ तो ये क्लैरिफाई करना चाहता था, इससे आपको चलता है कि इंपॉर्टेंस क्या रही होगी फ़ारसी की उस ज़माने में. और दूसरा एक उन्होंने बताया कि कैसे जो उर्दू है
ये साइड नोट है एक्चुअली। उर्दू है वो कैसे उसमें संस्कृत और प्राकृत का उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, बट उसमें लोन वर्ड्स टर्किक के भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उर्दू के भी हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अरबी के भी काफ़ी वर्ड्स हैं उसमें। um, तो हमें पता है कि क्योंकि बेसिकली ये मिक्स है पर्शियन और हिंदी का, जो उर्दू है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मिक्स है अरबी और पर्शियन का अरबी और पर्शियन का। तो आई डोंट नो ये उनको पढ़ाया ये स्पेशली गलत गया है, क्योंकि अगर वो ये पढ़ा भी रहा है तो भी आप ये सोचो ठीक है ये अरबी और पर्शियन का मिक्सचर है, तो फिर आप हिंदी बोलने वालों को ये भाषा क्यों समझ में आ रही है? ये अपने आप में क्वेश्चन उठता है। बट एनीवे, एक साइड नोट के तौर पे तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पर्शिया जो है ना वो ऑलमोस्ट एक 3,500-4,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। साइरस द ग्रेट ने 4,000 साल पहले अकेमेनिड एम्पायर बनाया था, जो कि मॉडर्न डे ईरान से बहुत ज़्यादा बड़ा था। इंडिया के साइज़ का एम्पायर था वो, मॉडर्न डे इंडिया के साइज़ का या उससे भी बड़ा। 4,000 साल पहले शायद दुनिया का सबसे बड़ी, दुनिया की पहली सबसे बड़ी सुपर पावर अपने ज़माने की साइरस द ग्रेट ने बनाया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्शिया इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन का जो अट्रैक्शन होता है बारबेरियन लोगों के सामने ये होता है कि उनकी शान, उनका कल्चर, उनका म्यूज़िक, उनकी लैंग्वेज, उनकी पोइट्री, उनकी लिखने की बहुत लाइक आर्किटेक्चर। सिविलाइजेशन ये सारी चीज़ें लेके आती है बंदे को ज़्यादा, सही वर्ड नहीं मिल रहा लेकिन स्टाइलिश बनाती है, काइंड ऑफ रॉयल बनाती है। इन चीज़ों से आप एम्पायर नहीं जीत सकते। एम्पायर जीतने के लिए आपको चाहिए बारबेरिज्म, जैसे मंगोल्स थे, जैसे कि सेंट्रल एशियन टर्क्स थे। तो सेंट्रल एशियन टर्क्स बेसिकली बारबेरियंस थे उस ज़माने में। ऐसा मैं उनको एक नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, बट उस ज़माने में वही थे, उनका काम ही था हमले करना, हमलावर लोग थे वो। तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट तो कर लिया इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो आज का टाइम का एरिया है सारा का सारा, लेकिन कॉन्क्वेस्ट करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, किसी चीज़ को रन करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। रन करने के लिए आपको सिविलाइजेशन चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, आपको टेक्नोक्रेसी चाहिए, और वो चीज़ उन्होंने उठाई पर्शिया से, क्योंकि वो इजीली एसिमिलेट हो पाई। क्योंकि जब मुगल्स आए थे उनसे पहले भी दिल्ली सल्तनत थी, और उनकी भी भाषा एक्चुअली काफ़ी हद तक वो पर्शियन ही यूज़ करते थे, क्योंकि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे ना वो लोकल लोगों पे इतना यकीन नहीं करते थे, क्योंकि लोकल लोग डिफरेंट फेथ से आते थे। पर्शिया से उनको इस तरीके के लाइक राजशाही चलाने वाले, जिनके अंदर ये कैपेसिटी, नॉलेज, पढ़े लिखे लोग जो राजशाही को चलाना कैसे ये जानते हो, वो उनको पर्शिया से मिलते थे। इवन जब अरब्स ने भी जब जब कैलिफेट्स बनाई उन्होंने अपने पुराने टाइम में, जब उनकी शुरू की कैलिफेट्स बनी, जिसको राशिदुन कैलिफेट कहते हैं, तब उन्होंने पर्शिया को उसी टाइम पे ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो वो कैलिफेट थी वो बेसिकली उसको चलाने वाले मेन लोग पर्शियन ही आए बाद में, जिन्होंने उसे चलाया। जितने भी आप इस्लामिक गोल्डन एज के जो आपको राशिदुन, ये वो ये इनके नाम है जिन्होंने लाइक मेडिसिन में पढ़ाई की, ऑप्टिक्स में इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ाई की, इन चीज़ों में इन्होंने डेवलपमेंट की, वो सारे लोग पर्शियन ओरिजिन के ही थे। तो और पर्शिया और टर्की लैंड्स का बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान के एरिया में, नॉर्दर्न ईरान के एरिया में। तो तुर्कमेनिस्तान काफ़ी लंबे समय तक जो अकेमेनिड एम्पायर उसका पार्ट रहा है, डिफरेंट पर्शियन एम्पायर्स का पार्ट रहा है। तो ये भी एक कनेक्शन है उन लोगों के बीच में। तो ये सारी भी चीज़ें मैटर करती हैं। जस्ट एक हुमायूं की हेल्प पर्शियंस ने की, ये अपने आप में आई गेस पूरी वजह नहीं है इस चीज़ की, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट उसका भी, उसकी भी इंपॉर्टेंस रही होगी।